Hello student, how are you? I hope you are fine. You are most welcome in online classes Divine Public Senior Secondary School Maharajganj. This is Anurag sir, your SST teacher. After a long time, we are connecting here. From today, I shall teach you social science by online classes. So, everyone come to the point. Today, we are going to discuss about political science. So, let's start. First chapter of political science, that is power sharing. Before understanding of power sharing, we have to understand that how many types of government running in the world, just like democratic, monarchy, communist, dictatorship, etc. In this, democracy is best form of the government comparison to other types of the government, because in the world maximum country are following democracy and also maximum country is struggling for democracy comparison to other types of the government. So you will ask, sir, why democracy is best comparison to other? Then my answer will be, there are lots of the feature in democracy, but some feature I will tell you. Democracy is form of government in which rulers are elected by the people on the principle of one person, one vote, one value. Second feature of democracy, democracy must be based on free and fair elections, where those who are currently in power have a fair chance of losing. Voters should have a choice of candidates. And third feature of democracy, in a democracy, the final decision making power must rest with those elected by the people. So we are and world also saying that democracy is best type of the government. Now come to the point. Our chapter is power sharing. Power sharing. I have written here many topics. First topic is definition of power sharing. So we have to understand the definition of the power sharing. What is power sharing? The concept of power sharing of providing a permanent share of power in the government or respecting the feeling and interest of different communities and region is known as power sharing. Power sharing is a spirit of democracy. Power sharing is desirable in democracy. Without power sharing, there is no actual concept of democracy. So power sharing should be in democracy. Second is case study of Belgium and Sri Lanka. So first of all, we have to read the case study of the Belgium. What happened in Belgium? Belgium is a small country in Europe. It has bordered with Netherlands, France and Germany. Approximately 59% in the Flemish region speak Dutch. Another 40% people in the Wallonia region and speak French. And remaining 1% of the Belgians speak Germany. And next, in the capital city Brussels, you know about the Brussels. The capital of Belgium is Brussels. 80% people speak French while 20% are Dutch speaking. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of the economic development and education much later. The tension between the two communities was acuter in Brussels.
Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population, and there was a conflict in Sri Lanka between Sinhala and Tamil communities. The Sinhala speaker 74 and Tamil speaker are 18%. Among Tamils, there are two subgroups. Tamil native of the countries are called Sri Lankan Tamils, and the rest whose forefathers came from India as a population workers during the colonial period is called Indian Tamils. Sri Lankan Tamils were native Tamils. So two country case study here. Now next topic is here, ethnic composition of Belgium. We have completed this. Majoritarianism in Sri Lanka, this also completed. Accommodation in Belgium. Accommodation in Belgium. This is the topic. Belgium recognized the existence of regional difference and cultural diversity. Between 1970 and 1993, they amended their constitution 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country. Here are some of the elements of the Belgium models. अब थोड़ा सा हम लोग श्रीलंका और बेल्जियम की कहानी को अच्छे से समझते हैं. पावर शेयरिंग को हम लोग सत्ता के साझेदारी के रूप में समझ सकते हैं. प्रजातंत्र वाले सरकार में पावर शेयरिंग का बहुत ही बड़ा महत्व है. बिना पावर शेयरिंग के प्रजातंत्र अच्छे से चल नहीं पाएगा. हमारे देश में इन इंडिया देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द पावर शेयरिंग, one horizontal and second vertical. हॉरिजॉन्टल में 3 प्रकार के पावर शेयरिंग का ऑर्गन है, जैसे लेजिस्लेटिव, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी. जबकि अगर हम वर्टिकल की बात करें तो वर्टिकल में 4 प्रकार के होते हैं. अगर हम बॉटम स्तर पे देखें तो लोकल गवर्नमेंट, उसके बाद है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद है यूनियन गवर्नमेंट और सबसे ऊपर है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी इंडियन गवर्नमेंट. तो ये हॉरिजॉन्टल और पावर शेयरिंग और वर्टिकल पावर शेयरिंग की हम लोग बात कर रहे थे. तो थोड़ा सा केस स्टडी हम लोग सुनेंगे बेल्जियम के बारे में. बेल्जियम एक यूरोप का छोटा सा देश है जिसकी आबादी हमारे देश के हरियाणा राज्य से भी कम है. अब यूरोपियन कंट्री होने के नाते हम लोग इसका केस स्टडी पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेंच का रेवोल्यूशन, रशियन रेवोल्यूशन, इंग्लैंड की क्रांति, यूरोप के बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनके हम लोग इतिहास पढ़ते हैं और उनके इतिहास से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं. प्रजातंत्र के बारे में, राजशाही के बारे में, कम्युनिस्ट के बारे में, तानाशाही के बारे में. इस नाते इन लोगों के हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है हमारे इतिहास के लिए. बेल्जियम के बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे. बेल्जियम एक छोटा सा देश है यूरोप में और ये चारों तरफ 3 देशों से घिरा हुआ है, नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से. तकरीबन 59% यानी 59% फ्लेमिंग्स वहाँ का एक क्षेत्र है जहाँ पर डच भाषा बोलने वाले लोग हैं ज़्यादा. जैसे हमारे देश में हरियाणा है, बिहार है, तमिलनाडु है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, उसी प्रकार बेल्जियम में भी बहुत सारे छोटे छोटे राज्य हैं जिनमें से एक राज्य है फ्लेमिश. वहाँ पर डच लैंग्वेज को बोलने वाले तकरीबन 59% लोग हैं और दूसरे 40% लोग वलानिया रीजन में हैं जो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और बाकी के 1% लोग जर्मन भाषा का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन एक अलग सी बात यह है कि ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ थोड़ा सा आंकड़ा दूसरा है. वहाँ 80% लोग फ्रेंच भाषा का इस्तेमाल करते हैं जबकि 20% लोग डच भाषा का इस्तेमाल करते हैं. और मैं अभी बताया हूँ आपको कि पूरे बेल्जियम में तकरीबन 59% लोग डच हैं और 40% लोग फ्रेंच स्पीकर हैं.
लेकिन ब्रुसेल्स जो बेल्जियम की राजधानी है वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज को ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, तकरीबन 80%, और डच लैंग्वेज को 20% इस्तेमाल किया जा रहा है। तो एक यहाँ भी एक कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, और इस कॉन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व किया गया, इसके लिए बेल्जियम ने एक तरीका निकाला। 3 प्रकार की गवर्नमेंट को बनाया। पहला है स्टेट गवर्नमेंट, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तीसरा है कम्युनिटी गवर्नमेंट। और सेम यही कंडीशन था श्रीलंका का। श्रीलंका भारत के दक्षिण में स्थित एक छोटा सा देश है, दक्षिण एशियाई का भी एक छोटा सा देश है, और यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया था। श्रीलंका 1948 में आज़ाद हुआ था। यहाँ 2 मतलब बोलने वाले लोगों के बीच में मतभेद था। पहले में लोग थे सिन्हाला, दूसरे में थे तमिल। सिन्हाला तकरीबन 74% श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले थे, और 18% तमिल थे, और 18% में 13% वहाँ के नेटिव तमिल थे, यानी जो श्रीलंका के मूल लोग थे तमिल, वो लोग थे, और 5% हमारे इंडिया से जो कभी उनके मतलब दादा वहाँ प्लांटेशन के काम के लिए श्रीलंका गए थे, उनके जो वंशज थे वो 5% में थे। और वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा विवाद हुआ भाषा को लेकर। सिन्हाला लीडर ये चाह रहे थे कि श्रीलंका में जो भी सरकार बने, जो भी काम हो, उसका ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला हो, जबकि तमिल्स इसका विरोध कर रहे थे। और वहाँ पर 1956 में एक नियम बना दिया गया, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में ला दिया गया, और एक नया संविधान को वहाँ बना दिया गया, जहाँ बुद्धिज़्म को और भी मतलब सिन्हाला ग्रुप के जितने भी रिलीजन कम्युनिटी वाले लोग थे, सब लोग अपने अपने बस पक्ष को देखने लगे और दूसरे को नेगलेक्ट करना शुरू कर दिए। इसी नाते वहाँ पर भी एक सिविल वार हुआ। तो 2 चीज़ हमको देखने को मिलता है, एक बेल्जियम की स्टोरी से और एक श्रीलंका की स्टोरी में। बेल्जियम के स्टोरी में हम लोग ये देखे कॉन्फ्लिक्ट बेल्जियम में भी था, लेकिन बेल्जियम कंट्रोल कर लेता है एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना करके। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब वो गवर्नमेंट होता है जिसमें किसी भी भाषा को, किसी भी धर्म के, किसी भी मतलब स्थान को लोग फॉलो कर सकते हैं और अपने ट्रेडिशनल कस्टम ट्रेडिशन को मनाने के लिए सरकारी व्यवस्था भी पा सकते हैं। उसको हम लोग कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो बेल्जियम में हुआ। जबकि श्रीलंका में ऐसा कुछ नहीं हुआ। श्रीलंका में सिन्हाला को ज़बरदस्ती लाद दिया गया तमिलों के ऊपर, इसी नाते श्रीलंका में एक सिविल वार हो गया। तो हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र में या किसी भी गवर्नमेंट में अगर कई समुदाय के लोग हैं, कई समूह के लोग एक समाज में रहते हैं, एक राष्ट्र में रहते हैं, तो उनके बीच में तालमेल होना चाहिए, एकोमोडेशन होना चाहिए। अगर नहीं तालमेल बन पाएगा तो वहाँ पर कोई समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखने को मिलेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। यहाँ पर 3 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, इसको आप लोग कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है विच आर द 2 मेजर सोशल ग्रुप इन श्रीलंका, अभी मैं एक्सप्लेन किया हूँ आपको। दूसरा है व्हाट इज़ मेजोरिटेरियनिज्म, जैसे कि आपको बताना है कि बेल्जियम में कौन लोग मेजॉरिटी में थे, कौन माइनॉरिटी में थे, और श्रीलंका में कौन मेजॉरिटी में था, कौन माइनॉरिटी में था। तीसरा है क्वेश्चन पावर शेयरिंग इज़ द बेसिक स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी जस्टिफाई, इसको भी आप लोग आंसर इसका बताएंगे, जस्टिफाई करेंगे इसको। ओके, थैंक यू।